Hello students, welcome in social science class. Earlier we had discussed the causes of the revolt. Now today we will discuss about the course of the revolt, that how this revolt spread to different places, who led this revolt and how it's going on. Let's start. The sepoy broke out into an open revolt at Meerut in April 1857. सबसे पहले सिपॉय ने इस आंदोलन को शुरू किया था कहाँ पर, मेरठ में। लेकिन जब अप्रैल में उन्होंने शुरू किया था तो उनको जल्द ही ब्रिटिशर्स ने क्या किया, दे रिफ्यूज टू टच द ग्रीस कार्टेजेस, दे वर कोर्ट मार्शल मीन्स दे वर रिमूव्ड फ्रॉम द आर्मी. Those sepoys who were working in the army, they were court martial and sentences to 10-year imprisonment. उन्हें 10 साल की जेल की सजा सुना दी. Then again the regiment in Meerut revolted on May 10, 1857. They broke open the prison and released the imprisoned soldiers. क्योंकि अब जो सोल्जर्स थे उनके मन में इतना गुस्सा भर चुका था, जब उन्होंने सोल्जर्स को अरेस्ट किया तो बाकी जो रेजिमेंट के सिपॉयज़ थे उन्होंने फिर से वहाँ पर आंदोलन शुरू किया. और उन्होंने क्या किया, उन्होंने जेल को तोड़ दिया और सभी कैदियों को रिहा कर दिया. देन दे मार्च टू दिल्ली, वो दिल्ली की तरफ बढ़े ऑन 11 मई एंड रेबल अंडर द बहादुर शाह जफर सेकेंड. In the beginning we had learned this, that they appealed to Bahadur Shah Jafar and became the leader of this movement. Then this revolt spread to other places, like it was led by the Nana Sahib in Kanpur, along with his General Tantya Tope, and by Begum Hajrat Mahal in Awadh. And who led the revolt from Jhansi? Rani Lakshmi Bai. All these rulers led the revolt very bravely and fought valiantly from their kingdom. Then this revolt spread to the Bareilly, Agra, Banaras and other places. And there were some people who didn't participate in this movement. Who were these? The Sikh leader in Punjab, Nizam of Hyderabad, Sindhia of Gwalior did not join the revolt. The Madras and Bombay regiment also did not join the revolt. Afghan and Gorkhas remained loyal to the Britishers. Here you can ask the question, who were the member of the society? Those didn't participate in the revolt of 1857. So these were Sikh leader of Punjab, Nizam of Hyderabad, Sindhia of Gwalior did not join the revolt. Madras regiment, Madras and Bombay regiment, and Afghan and Gorkhas, they remained loyal to the Britishers. And what we have done, the centers, different places, you can also have to locate in the map also. Here is a map, I'll show you. Yes. These were the centers of revolt of 1857. Barakpur, from where the Mangal Pandey started the revolt. All these places you have to mark on the political map of India and paste in your notebook. Okay. The revolt was started by the sepoy, but the participation of peasants and the artisans gave the revolt its real strength. And it reflected the Hindu-Muslim unity also. Although the revolt was a great event, but it was effectively suppressed by the Britishers. इसे हमने क्यों फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस कहा था, क्योंकि चाहे ये शुरुआत सिपॉय ने की थी, बट इसके अंदर डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया था. हिंदू मुस्लिम की यूनिटी नज़र आ रही थी और पहली बार वो सभी मिलकर जो नेशन के लिए ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट वो खड़े हुए थे. लेकिन इसके बावजूद भी ब्रिटिशर्स ने चाहे इसे जो था सप्रेस कर दिया था, उन्होंने दबा दिया, इस आंदोलन को सफल नहीं होने दिया. लेट्स सी हाउ दे सप्रेस द रिवोल्ट. देयर इज अ क्वेश्चन ऑल्सो इन योर टेक्स्ट, NCERT क्वेश्चन और टेक्सचुअल. How British led to the suppression of the revolt. British military officer Fred Delhi, क्योंकि वहाँ से ही वो लीड कर रहे थे बहादुर शाह जफर, तो सबसे पहले उन्होंने दिल्ली को ही कंट्रोल में लिया, which was the main center, epicenter of the revolt. They freed it from the rebels. Then the Kashmiri gate was blown up. Hundreds of peoples were massacred. हजारों लोगों का कत्लेआम किया गया. बहादुर शाह जफर सेकेंड, the Mughal emperor was tried for the treason. उसके
ऊपर केस चलाया गया कि उसने देशद्रोह किया एंड एक्साइल टू रंगून, उसे कहाँ भेज दिया गया, रंगून. एंड हिज सन वर क्रूअली शॉट डाउन एज दे वर हेल्ड गिल्टी ऑफ द मर्डर ऑफ द इंग्लिश मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन. उसके बेटों को भी मार दिया गया. क्या उस पर दोष लगाया गया कि उन्होंने बहुत सारे इंग्लिश मैन, वुमेन और चिल्ड्रन को उनका मर्डर किया है. The control of Delhi and imprisonment of Bahadur Shah Zafar by the British broke the backbone of the mutiny. अब आप ये देखो, जब लीडर ही नहीं रहा, लीडर ही अरेस्ट हो गया, तो ऑब्वियसली बाकी जो उनके फॉलोअर्स थे वो उनकी स्ट्रेंथ जो कम हो जाती है, वो इमोशनली वीक या मेंटली जो है वो वीक हो जाता है. एक लीडर होता है जो उन्हें इंस्पिरेशन देता है, उन्हें आगे बढ़ने के लिए इंस्पायर करता है. तो अब लीडर ही जब उनका वहाँ ब्रिटिशर्स ने उन्हें पकड़ लिया, एग्जाइल कर दिया, तो बाकी जो थे वो धीरे धीरे पीछे स्लो हो गए. लखनऊ वॉज रिकैप्चर्ड इन 1858. रानी लक्ष्मीबाई वॉज किल्ड इन द बैटल एंड तांत्या टोपे वॉज ऑल्सो कैप्चर्ड एंड हैंग टू डेथ. तांत्या टोपे को भी फांसी की सज़ा दे दी. सो दिस एंडेड द एपिसोड ऑफ हिस्टोरिक रिवोल्ट एंड इट वॉज कॉल्ड द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. Clear student? This was the suppression of the revolt. Next is the causes of failure of the revolt. This is very important question you can ask in board for the 5 marks. In spite of the participation of different section of the society, why this moment, this revolt was failure, or in very simple words we can say, what were the causes of the failure of the revolt. जो कॉजेज़ ऑफ रिवोल्ट से भी इम्पॉर्टेंट है कॉजेज़ ऑफ फेलियर, कि ये रिवोल्ट क्यों नहीं सक्सेस रहा, क्या वजह थी कि ये हमें वो मे बी हमें जो आज़ादी थी वो कई टाइम पहले मिल जाती, या क्या वो रीज़न थी जिस वजह से हम इसमें सक्सेस नहीं हो रहे. फर्स्ट वन इज़ इट वॉज स्टार्टेड बिफोर द प्लान डेट, नॉट अकॉर्डिंग टू द प्लानिंग. द अपराइजिंग हैड बिन प्लान्ड फॉर द मंथ्स. इसकी प्लानिंग जो थी वो क्या की गई थी कि 31 मई को, यू कैन राइट डाउन स्टूडेंट, 31 मई को वो शुरू करेंगे. बट यू रिमेंबर इट वॉज स्टार्टेड ऑन द 10 मई एंड सम प्लेसेज इट वॉज स्टार्टेड ऑन द अप्रैल वेयर द सिपाही रिफ्यूज टू यूज द कार्टरिज. सो व्हेन anything or any moment or any activity go without the planning, its result not as good as if we do with द प्लानिंग. अगर हम प्लान करके कुछ काम करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली चलते हैं, तो हमें उसके आउटकम भी बेटर मिलते हैं. लेकिन अगर वो प्लानिंग से पहले या अचानक से हो जाए तो वो हमें रिजल्ट्स नहीं मिलते. तो यही इसी रिवोल्ट में भी हुआ था. जो विद्रोह था वो प्लान किया गया था 31 मई को, बट इट वॉज स्टार्टेड earlier. The uprising had been planned for months, but it broke out before the appointed date, and it did not go according to the plan, as the revolutionaries failed to spread it beyond the central India and Delhi. मतलब सेंट्रल इंडिया और दिल्ली से बाहर गया ही नहीं, क्योंकि ये प्लानिंग के अकॉर्डिंग नहीं चल पाया. इफ़ द प्लान हैड गोन एज पर द स्केड्यूल, द रिवोल्ट वुड हैव ब्रोकन आउट इन मैनी पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड सिमल्टेनियसली इट वुड हैव बीन वेरी डिफ़िकल्ट फॉर लॉर्ड कैनिंग, जो उस टाइम के गवर्नर जनरल थे लॉर्ड कैनिंग. उनके लिए मुश्किल हो जाना था इस रिवोल्ट को कंट्रोल करना अगर ये प्लानिंग के अकॉर्डिंग जाता. तो सो इट वॉज नॉट अकॉर्डिंग टू द प्लान, दैट्स वाई इट was not success as it should be. जितना होना चाहिए था वो नहीं हो पाया. ये फेलियर रहा किस वजह से? बिकॉज इट वॉज स्टार्टेड बिफोर द प्लान डेट. सेकेंड पॉइंट इज no unity among the rebels. The ideas of nationalism had not yet developed. No doubt, different section of society took part in this movement, but all have the different notions. सभी sections ने participate किया था. peasants ने भी किया इसके अंदर, rulers ने भी किया, सिपाहीज ने भी किया, लेकिन उन सबका जो
इसके अंदर पार्टिसिपेट करने का जो रीज़न था या स्वराज का मीनिंग था वो सबका अलग अलग था। सोल्जर्स ने क्यों पार्टिसिपेट किया? क्योंकि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था। पीजेंट्स के साथ क्योंकि उनकी लैंड छिन गई थी, उनसे ज़्यादा लैंड रेवेन्यू लिया जाता था। और रूलर्स ने क्यों किया? क्योंकि उनकी किंगडम लॉस्ट हो रही थी। सो मीन्स दे हैव डिफरेंट नोशन ऑफ द रिवोल्ट. Nobody was there for the independence of the country. So that was the also reason that this revolt became failure. There was no common ideology amongst the rebels. The Sepoy of Bengal wanted to revive the glory of the Mughals, while Nana Sahib and Tanta Tope tried to re-establish the Maratha power, and Rani Lakshmibai fought for her lost kingdom. Means they were involved in this movement for their own cause, not for the nation cause. That's why it was not success. Third was the rising was not widespread. It means it was limited to the some places. इट वॉज लिमिटेड टू नॉर्थ एंड सेंट्रल इंडिया. ये सेंट्रल इंडिया दिल्ली से बाहर ही नहीं गया. और बहुत सारे ऐसे जो हमने अभी पढ़ा था कि कोर्स के अंदर कि कईयों ने पार्टिसिपेट ही नहीं किया था. जैसे पंजाब के लीडर्स ने नहीं किया, निज़ाम ने, सिंधियाज ने, दे वर अनअफेक्टेड बाय द रिवोल्ट. गोरखाज ऑल्सो दे वर द लॉयल टू द ब्रिटिशर्स. वो ब्रिटिशर्स के प्रति वफादार रहे, अपने देश के प्रति नहीं. बट हेल्प द ब्रिटिश इन सप्रेसिंग द म्यूटनी. देखो, अपने देश की मदद तो करी नहीं, बल्कि देश के साथ उन्होंने गद्दारी की कि दुश्मनों के साथ मिलकर अपने सीक्रेट बताकर वो इस म्यूटनी को उन्होंने कैसे दबाया जा सकता है या कैसे रोक सकते हैं, उनकी मदद कर रही थी. So it was not widespread. Fourth one is the rebel could not match the sophisticated and modern weapons. Here you can give the title Lack of Modern Weapons and Disciplined Army. The Britishers had strong army and disciplined army, and they had modern weapons. उनके पास modern weapons थे, उनकी army strong थी as compared to the Indians. They have, and moreover they have an organized communication system and military strategies that led to the British victory. इस वजह से वो बड़ी आसानी से उन्होंने इंडियंस को जो रिवोल्ट को कंट्रोल में कर लिया और उन्हें बड़ी आसानी से सप्रेस कर दिया. एंड लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट, लैक ऑफ स्ट्रॉन्ग लीडर. किसी भी मोमेंट या कोई भी एक्टिविटी डिपेंड करते हैं कि उसका लीडर कैसा है. अब बहादुर शाह जफ़र लीडर तो बने, बट ही वॉज फिजिकली एंड मेंटली वीक. 80 ईयर्स ओल्ड, वो 80 ईयर्स ओल्ड थे, फिजिकली भी वीक थे और वो मेंटली भी वीक. वो उतने मतलब पावरफुली अपने सोल्जर्स को या अपने जो रेबल्स थे उन्हें इंस्पायर नहीं कर पाए थे. द इंडियन रूलर्स fought to liberate their own territories and did not think about the freedom of the whole country. Moreover, the company officials got timely help from the government of the Britain. So these were the causes of failure of revolt of 1857. First one is it started before the planned date. Number 2, lack of common ideology. Number 3, it was not widespread. Number 4, lack of strong army and communication system. Last one is lack of strong leader. So these were the causes which were responsible for the failure of the revolt of 1857. Last topic is the results of the revolt. चाहे ब्रिटिशर्स ने इसे सप्रेस कर दिया, लेकिन जो इसके रिज़ल्ट से क्या निकले, रिज़ल्ट बहुत बड़े रिज़ल्ट इसके सामने है. जो कंपनी जो थी, जो इंडिया में ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी, फर्स्ट ऑफ ऑल वो कंपनी ही ख़त्म हो गई. द रूल ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी एंडेड विद क्वीन विक्टोरियाज प्रोक्लेमेशन ऑफ नवंबर 1, 1858. 1 नवंबर 1858 को क्वीन विक्टोरिया, जो इंग्लैंड के उस टाइम महारानी थी, उन्होंने प्रोक्लेमेशन डिक्लेरेशन, एक अनाउंसमेंट की, एक ऑर्डर निकाला जिसके अंदर क्या डिक्लेयर किया. फर्स्ट पॉइंट क्या था रिज़ल्ट इसका? द एंड ऑफ ईस्ट इंडिया कंपनी. और ऐसा नहीं कि रूल ख़त्म हो गया, अब डायरेक्ट रूल कहाँ से चल रहा था? ब्रिटिश क्राउन. ये आपका चैप्टर 8 में भी आया. व्हेन डिड ईस्ट इंडिया कंपनी रूल केम टू एंड?
on November 1st, 1858. And who took control over India after the East India Company? The British Crown. अब डायरेक्ट रूल कहाँ से चलेगा? ब्रिटिश क्राउन की तरफ से, ब्रिटेन से चलेगा. एंड शी एज्यूम्ड द टाइटल ऑफ द एम्प्रेस ऑफ इंडिया. A Secretary of State was appointed by the British Parliament to look after the governance of India with the help of a council. अब अपने आप को उन्होंने जो है रूलर्स अपने शासिका बना दिया इंडिया के, कि वो रूल करेंगे डायरेक्ट वहाँ से, और जो ब्रिटिश क्राउन सारा एडमिनिस्ट्रेशन इंडिया का देखेंगे. और उनकी मदद के लिए एक सेक्रेटरी ऑफ स्टेट को अपॉइंट किया गया, जिनके साथ कुछ मेंबर्स की एक काउंसिल थी. और उसके बाद एक क्या उन्होंने इंट्रोड्यूस किया? द गवर्नर जनरल वॉज गिवन द टाइटल ऑफ वॉइस राय. जो पहले गवर्नर जनरल हमने कितने नेम पढ़े, लॉर्ड डलहौजी थे, कैनिन थे, वॉन हेस्टिंग्स थे. अब गवर्नर जनरल का नेम क्या रख दिया, टाइटल क्या दे दिया? वॉइस राय. और उसका मीनिंग क्या? द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द ब्रिटिश क्राउन. वो रूल वहाँ से करेंगे लेकिन अपना रिप्रेजेंटेटिव वो इंडिया में भेजेंगे, तो वॉइस राय उसको टाइटल दिया गया. द ब्रिटिश रीऑर्गेनाइज द आर्मी टू प्रिवेंट एनी फ्यूचर रिवोल्ट्स. अब ब्रिटिशर्स और ज़्यादा अलर्ट हो गए, अवेयर हो गए, क्योंकि सिपॉयज़ ने ये शुरुआत की थी कि उन्होंने अब ध्यान में रखा कि हमने इंडियंस को आर्मी में भर्ती करा था, तो उन्होंने अपनी आर्मी को फिर से ऑर्गेनाइज़ किया, रीऑर्गेनाइज़ किया, ताकि फ्यूचर में कोई रिवोल्ट ना हो. The policy of ruthless conquest and annexation of Indian territories was given up. और उन्होंने इंडियंस को ये भरोसा दिलाया कि अब से वो कोई भी नई टेरिटरीज़ को इंडिया के जो किसी भी स्टेट के ऊपर कब्जा नहीं करेंगे. हालांकि ये सच नहीं था, वो अपने बेनिफिट के लिए वो उन्होंने अपने ये जारी रखना था, लेकिन फिर भी उन्होंने अनाउंस किया कि वो अपनी ये पॉलिसी जो है एनेक्सेशन की, उसे अब गिव अप करेंगे. The Indian princes were given the assurance that their state would not be annexed and were granted the right of adoption. कि अब उन्हें right to adopt दिया जाएगा, जो under doctrine of lapse के अंदर उन्होंने ये right छीन लिया था कि अब अगर किसी राजा के पास उनकी अपनी औलाद नहीं है तो वो बच्चा गोद नहीं ले सकते. But after this revolt, they given that right. Full religious freedom was guaranteed to Indians. जो उन्होंने हिंदू लॉ ऑफ प्रॉपर्टी में कहा था कि सिर्फ क्रिश्चियंस को ही प्रॉपर्टी में शेयर मिलेगा एंसेस्टर की, अब उन्होंने वो भी चेंज कर दिया कि अपने अपने रिलीजन को हम मान सकते हैं. दे वर ऑल्सो गिवन द एश्योरेंस दैट हाई पोस्ट वुड बी गिवन टू देम विदाउट एनी डिस्क्रिमिनेशन. जो सोल्जर्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा था कि हाई पोस्ट सारी वो किसको दे रहे थे? यूरोपियंस को दे रहे थे, हाई पे उनको दे रहे थे. तो अब उन्होंने इसके रिजल्ट में ये कहा कि वो इंडियन को भी हाई पोस्ट और हाई वेजेस देंगे. By the end of 1859, British authority in India was fully re-established, but the revolt proved to be the first great struggle for freedom. It became a source of inspiration for the later freedom struggles, and its heroes became household name in the country. So these were the result of the revolt. चाहे हमें उस टाइम आज़ादी नहीं मिली, लेकिन ब्रिटिशर्स के माइंड में एक बहुत बड़ा झटका ज़रूर लगा. उनको ये एहसास दिलाया गया कि अब इंडियन जो है वो चुप नहीं रहेंगे. उन्हें एहसास होना शुरू हो गया कि हमारे साथ अत्याचार हो रहा है, कि ब्रिटिशर्स हमें लूट रहे हैं, हमारे ऊपर रूल कर रहे हैं, हमें अपने गुलाम बना रहे हैं. तो उनके मन में ये चिंगारी अब उठ चुकी थी, आज़ादी की लड़ाई वो पनप रही थी. चाहे ब्रिटिशर्स ने इसे दबा दिया उस टाइम, बट ये आने वाले फ्रीडम स्ट्रगल के लिए इंस्पिरेशन बना, जो आगे चलकर हमें इसमें सक्सेस भी मिली थी. सो दीज वर द रिजल्ट्स एंड यू कैन ऑल्सो आस्क द सिग्निफिकेंस. क्या था इसकी इम्पोर्टेंस क्या थी, तो उसके अंदर भी हम बता सकते हैं दैट इट वॉज द फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस. पहली बार था ये. इट शो द यूनिटी, हिंदू मुस्लिम यूनिटी शो की थी. डिफरेंट सेक्शन ऑफ सोसाइटी ने पार्टिसिपेट किया था, एंड दे ऑल वर द अगेंस्ट द ब्रिटिश डोमिनेशन. So clear, students? Okay, bye.